Good morning, my dear students of class 9th. This is your biology class. Today in this class we continue to read our first chapter of biology. In this class बच्चे we read about branches of biology and where the biology applied. And at the last I also like to discuss you the question answers related to this chapter. Let's start. Biology is divided into several branches. These division can be made in at least three different ways. But there are three different ways in which the biology branches are divided. Number one, major kind of organisms. Number two, special group of organisms. And number three, approach on studying it. But in this part is very important part, and on both the way you learn the answer. The question may come like this way: give one word, give a one word. The study of plant, the study of animal, and also the answer you define it. They may ask the question like define zoology, define virology, define entomology. Let's start. अच्छा, what is botany? The study related plants. जब plants की हम study करते हैं that is called botany. Zoology, the study related to animals. जब हम animals की study करते हैं that is called zoology. The third one is human biology. बच्चे human biology भी human से पता लग रहा है कि हमारी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ये man की कैटेगरी की बात कर रहे हैं ये. The study of human as a living organism. Living organism की तरह means when we are living, that time the study of human is known as human biology. The study of human as a living organism and his relationship with other living organism. Only a relationship with other like plant, animal, microorganisms. The study of human and their interaction with the society comes under anthropology. Anthro means man and logy means study. But now in society there are also non-living things. जब हम अपनी सोसाइटी में किसी भी चीज के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं that study is known as anthropology. Special group of organism. बच्चे what are the special groups of organism? Bacteriology. बच्चे बैक्टीरियो यहाँ से पता लग रहा है the study related to bacteria. Viro means virus, the study related to virus. Myco means fungi, the study of fungi. Next, algology. बच्चे algo, you understand the term algo means the study of algae, but the other name is phycology. Entomology, the study of insects के related बच्चे. Ichthyology, the study of fishes. Herpetology, the study of reptiles like lizard, snakes. Ornithology बच्चे the study of birds. Approach on studying it. And anatomy, the study of gross structure of the organ in an organism as seen in dissection. Morphology, the study of form and structure of plant and animal. Different forms, क्या form है, कैसा उसका structure है, किसकी बात कर रहे हैं ये? Animal and plant. Animal plant का जो form है, जो structure है, जब उसके बारे में बात करते हैं that is called morphology. It includes essentially the understanding and interpretation of structure both external and internal. Sometimes students wrongly consider morphology to be concerned with the study of external parts only. But this is not the study. Morphology सिर्फ अंदर वाले पार्ट्स की स्टडी नहीं है. जैसे हमारे इंटरनल पार्ट कौन कौन से हैं, हमारे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया. नॉट ओनली द स्टडी ऑफ हार्ट एंड लंग बट ऑल्सो द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन. एक्सटर्नल ऑर्गन जैसे आईज, नोज. ओके, स्टडी ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. प्लांट्स में इंटरनल क्या है, प्लांट्स में क्या है, हम प्लांट्स में टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं. टिश्यूज आर इंटरनल. एंड आउटर ऑर्गन लाइक लीफ, हम लीफ के बारे में बात कर सकते हैं. बोथ बच्चे प्लांट एंड एनिमल के दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स की जो स्टडी होती है दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. हिस्टोलॉजी बच्चे
मिनट स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मिनट, मिनट मीन्स बहुत छोटे, टाइनी बिट ऑफ द बॉडी एट टिश्यू लेवल, जो टिश्यू लेवल, अभी टिश्यूज है वो हम अपनी नेक सेल भी नहीं अपनी नेक टाइप से देख सकते, टिश्यू भी नहीं देख सकते, दे आर वेरी स्मॉल। तो इतने स्मॉल जो कि हम किसकी हेल्प से देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। साइटोलॉजी, बच्चे साइटोलॉजी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। जब हम एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर मीन्स कैसा वो है, कैसे हैं, वो क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी बच्चे, द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कैसा काम है, क्या एक्टिविटी करते हैं, कैसे काम करते हैं ये किसी भी ऑर्गन और उसके पार्ट के बारे में, ऑर्गेनिज्म और उसके पार्ट्स के बारे में। एम्ब्रियोलॉजी बच्चे, एम्ब्रियो, द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन और पहले वो बन रहा है फॉर्मेशन और कैसे वो बड़ा हो रहा है, किसके एम्ब्रियो की बात करें, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे वो प्लांट्स का एम्ब्रियो है या वो एनिमल्स का एम्ब्रियो है। व्हेन वी स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। टैक्सोनॉमी बच्चे, द स्टडी द साइंस ऑफ नेम ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टमैटिक। इसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टमैटिक। जब हम साइंस के वे से हम किसी को नेम देते हैं, कोई नेमिंग करते हैं किसी ग्रुप का, या हम उसे किसी ग्रुपिंग में डालते हैं, या हम उसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, दे आर कम इन दिस कैटेगरी एंड द अदर नेम इज सिस्टमैटिक्स। इकोलॉजी, द रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इट्स बायोटिक, बायोटिक होते हैं बच्चे द लिविंग थिंग पार्ट, ठीक है, द लिविंग इन विच वी ओनली कंसिडर द लिविंग, and abiotic means non-living environment। बायोजियोग्राफी बच्चे, ज्योग्राफी, अगर हम बायोजियोग्राफी की बात करें मतलब ज्योग्राफिकल रीजन में कहाँ पे, अभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें हिली एरियाज में मिलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डेजर्ट्स में भी हमें मिलते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, एक जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। The study of geographical distribution of plants and animals, they come in the category of biogeography। Paleontology, tomology, the study of prehistoric form, prehistoric form is पुरातन समय का क्या, of life through fossils of plants and animals। हम fossils से क्या करते हैं, plants के fossils से और animal के fossils से जब हमें किसी prehistoric form मतलब पुरानी लाइफ के बारे में, पुराने समय के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में कुछ पता चलता है, दैट इज कम इन दिस कैटेगरी। नेक्स्ट, ओवल्यूशन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ, कहाँ से वो ओरिजिन हुआ, जेनेटिक्स, द साइंस ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स बच्चे मतलब कि पेरेंट्स से लेकर उनके बच्चों तक, ठीक है, कोई भी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। पैरासिटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स बच्चे, द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन एक्टोपैरासाइट और इनसाइड बच्चे लिव ऑन, या किसी के ऊपर रहें या अंदर रहें, किसी और ऑर्गेनिज्म के, और वहाँ पे उससे खाना लें। आपको पता है, आपने देखा ही होगा कुछ लाइस, जो लाइस होती है वो कहाँ पे रहती है, ठीक है, जिसके वो अगर वो बॉडी पे आ जाएं तो क्या करती हैं, वो ब्लड सक करती हैं। एंड सम स्टूडेंट दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टमक वॉर्म्स, पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो इनसाइड है, इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ पे जो बच्चा खाता है तो होता है ना, बच्चे की हेल्थ नहीं बनती, तो वो क्या रीज़न होता है हेल्थ ना बनने का, स्टमक वॉर्म्स होता है। वो जो नरिशमेंट जो उसकी बॉडी को मिलने हैं वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, वॉर्म्स यूटिलाइज कर रहे हैं। सो दे आर कम इन द कैटेगरी ऑफ पैरासाइट्स एंड द रिलेटेड द स्टडी इज पैरासिटोलॉजी। पैथोलॉजी बच्चे, द स्टडी ऑफ डिसीजेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो बीमारियां होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, कौन सी बीमारी है, जब इन बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द फिनोमिना एंड कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं,
मैंने इम्यूनिटी क्या बच्चे, जो हमें बचाती है किसी भी बीमारी से, फाइट करती है। क्लियर? यूजेनिक, द साइंस विच एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस थ्रू कंट्रोल हेरिडिटी। बच्चे हेरिडिटी को कंट्रोल करना, जैसे कि डिस्करेजिंग ए मैरिज दैट इज लाइकली टू शो अनफेवरेबल और हार्मफुल कैरेक्टर्स इन चिल्ड्रन। बायोकेमिस्ट्री, study of chemicals and reactions that take place inside the living things. One of its numerous application is DNA fingerprinting. तो ये इसके एग्जाम्पल है DNA fingerprinting. बच्चे अप्लाइड केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री हम कहाँ पे अप्लाइड करते हैं बच्चे? इट वी अप्लाइड इट इन एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीज, हनी बीज, वेटनरी साइंस, ट्रीटमेंट एंड सर्जरी ऑफ एनिमल्स, मैराइन बायोलॉजी, मैराइन में मतलब समुद्र में रहने वाले, हाउस होल्ड बायोलॉजी मीन्स हाउस होल्ड जैसे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, हाउस फ्लाइज वगैरह, डैमेज टू आर ऑन बॉडी एंड टू आर बिलोंगिंग्स। हॉरिकल्चर बच्चे, हॉरिकल्चर होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं। सेरिकल्चर बच्चे टू प्रोड्यूस सिल्क। पैसिकल्चर द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फिशेस। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मीन्स बच्चे बायोलॉजिकल इवेंट इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेल। बायोटेक्नोलॉजी बच्चे लिविंग सेल यूजिंग लिवर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड एरिया सच एज कैसे, जैसे बायोगैस प्रोडक्शन होती है बच्चे, फूड प्रोसेसिंग होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन है, वो सभी कहाँ किस कैटेगरी में आते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। कॉलिंग बच्चे ये एक ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही है जिसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली और नेचुरली बाय बोथ द वे। बायो इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग बच्चे क्या होता है? आर्टिफिशियली लिम्स, ज्वाइंट वगैरह क्या करते हैं, वो पार्ट्स जो हैं बॉडी के वो बनाते हैं। न्यूक्लियर बायोलॉजी, न्यूक्लियर बायोलॉजी बच्चे क्या है? इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव ऑन लिविंग थिंग्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएशन बायोलॉजी, द स्टडी क्या इफेक्ट हो रहा है बायो एक्टिविटी का। स्पेस बायोलॉजी, स्पेस बायोलॉजी मीन्स बच्चे सर्वाइवल प्रॉब्लम्स लिविंग थिंग्स को जब हम आउटर स्पेस में जाते हैं। एक्सोबायोलॉजी मीन्स न्यूएस्ट साइंस विच कंटेम्पलेट्स टू स्टडी लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जहाँ पे भी है। जेमोनोमिक, the study of genomes as opposed to individual genes, entire DNA sequence of an organism। बायोइन्फॉर्मेटिक, बायोइन्फॉर्मेटिक मतलब मैनेजमेंट और एनालाइज करना, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर्ड इन डाटाबेस। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स मीन्स वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, अभी कितना तो चला बायो, व्हेन यू ओपन योर मोबाइल फोन by identifying your fingerprints, that is called a biometric. Study of biology, how study biology help application of nature. The world of plants and animal is so vast and varied that one wonders at it. Despite this variety, biology help us to understand the basic unity of all living things in their essential features. कीपिंग हेल्दी रखते हैं। बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ मैनी डिसीजेस, क्या रीज़न, क्या कॉजेज है इसके, ठीक है। सर्टेन एजेंट्स जैसे हमें एलर्जीज हो जाती हैं। कन्वर्जेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मतलब बचाना, ठीक है। मैन एंड गवर्नमेंट, ठीक है। हाउ डेंजर ऑफ कटिंग फॉरेस्ट, डिस्क्रिमिनेशन, किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ग्रोइंग मोर फूड, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना ग्रो कर सकते हैं। मेकिंग अस कॉन्शियस सिटीजन मीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सैनिटाइजेशन, पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई प्रॉपर हो, प्रॉपर एंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है जो हमारी, ठीक है, उसे रिड्यूस करना चाहिए। हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो। बायोलॉजी इज नेसेसरी फॉर सर्टेन करियर्स के बारे में के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर मैनी करियर्स विच आर ओपन टू स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी का, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो बहुत सारे करियर आपके लिए, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप डेंटिस्ट बन सकते हो, बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हो, पैथोलॉजिस्ट बन सकते हो, ड्रगिस्ट,
entomologist, forester, teacher, a veterinary doctor, biotechnologist and so on. These are the scopes if you are a biology student. Now बच्चे, I hope you understand this chapter and try to learn applied biology and branches of biology. Now I am going to explain you the back exercise question answers. बच्चे, we start with fourth question. The name of the question is, name any two borderline sciences which are connected with biology. कौन सी ऐसी borderline साइंस है जो बायोलॉजी से कनेक्ट करती हैं? बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेट्रिक्स. क्लियर? बोथ दे लिंक्ड विद border science. Name the respective subdivision of biology. We already learned today science study of insect, entomology study of birds, ornithology study of fungi, mycology study of hereditary genetics. Name some profession other than medicine which require a basic knowledge of biology. जो basic knowledge है biology. Medicine is a field of health and healing, whereas biology is a natural science. Medicine जो है बच्चे वो एक field है health and healing, whereas जबकि जो biology वो एक natural science है, कुदरत, that deals with life and living entities. List below are the few professions apart from medicine that necessitate some biology knowledge. Lecturers, pathologists, microbiologist, genetic engineer and biotechnology engineer. I hope student you understand all the parts which I today discuss in this class. Thank you very much.